one and all. Know thyself has to be the objective of our life. But then there are distractions outside us and inside us in the pursuit. This is Pravartan Tatte, delighted and privileged to welcome you all to this 7th edition of Orange City Literature Festival organized by Raisoni Foundation. It seems distractions inside us are more devastating than the distractions outside us. These distractions can be dealt with some effective tools. Let us dive deep into the ocean of self, understand inner self, and overcome the distractions. I take this opportunity to introduce to the audience the hour's topic, Arihant Jain on the inner alchemy, meditate, heal, and manifest. Today we have with us Mr. Arihant Jain, an energy healing and chakra expert, pranic healing trainer, and managing trustee of Yoga Vidya Pranic Healing Foundation Trust of Jharkhand and Bihar. As the founder of GMCKS Wellness Studio in Ranchi, he has been actively serving in the field of spirituality for over 15 years. He has trained people to become healers for more than a decade, taught meditation on twin hearts to thousands, and introduced pranic healing to over 1 lakh people across India. Through his dedicated work, he has personally trained and nurtured over 500 individuals in the art and science of healing. Arihant is also a spiritual musician known for creating soulful musical evenings that blend divine energy with sound and spiritual insights. His music and meditative presence uplift and inspire people to connect with the inner self. He beautifully merges spiritual wisdom with a scientific approach to energy and consciousness, empowering people to live healthier, happier, and more purposeful lives. As the topic itself is so very captivating that can make all of us to delve deep into it, forgetting the time frame, I must appreciate the guest of this session for having accepted and structured this topic into a frame of 40 minutes, inclusive of the audience question hour. Ladies and gentlemen, without any further ado, I hand over the session to the dignitaries, over to the speaker, Mr. Arihant Jain, the inner alchemy, meditate, heal, manifest. So hello everybody, a very, very good morning. I'm so happy to be here because this is the first time I am taking a session in Nagpur, and to see such smiling faces waiting for almost half an hour, I'm grateful that you all are here. So before we start, can we just quickly look at your right, at your left, and greet people with a lot of love and warmth before we start the session, and with a big round of applause to everyone who's sitting here. Thank you. Is my voice audible and clear? It's clear? Okay. The topic for today is inner alchemy. What is alchemy? When we transform a matter from lower state to a higher state. What is inner alchemy? When we transform our negative emotions, negative thoughts, to positive thoughts and emotions. Do you feel that we have negative thoughts and emotions in our mind, in our head, and it affects us? Yes? So the purpose for today is कि कभी भी आगे जाकर हमें एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हम लंबा रह जाएं, तो उससे निकलना कैसे है, ये हम लोग आज प्रैक्टिस कर पाएं. You know, suppose somebody is sad or somebody is stressful. तो आप स्ट्रेस अगर देखोगे तो बहुत आम हो गया है. एवरीबडी सम और द अदर किसी तरह का स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, चाहे हेल्थ को लेके स्ट्रेस हो, राइट? सो हाउ टू ओवरकम दैट माइंड सेट एंड बिकम मोर पीसफुल इज वॉट वी विल प्रैक्टिस टुडे. ओके, इफ़ यू सी स्ट्रेस में बहुत बार हमसे गलतियाँ होती हैं. कहते हैं ना, बहुत स्ट्रेस में थे, चाबी कहीं रख दिए, मिल नहीं रहा है, राइट? जो स्टूडेंट्स हैं, सो स्ट्रेस में हैं, पढ़ के गए थे बट एग्जाम देते वक्त ब्लैंक हो गए, ऐसा होता है, राइट? सो स्ट्रेस अफेक्ट्स अस, इट अफेक्ट्स आवर प्रोडक्टिविटी, हमारे सोचने समझने की शक्ति को ये इम्पैक्ट करता है. सो दैट्स वाई वी नीड टू शिफ्ट टू पीसफुल माइंड सेट. दैट्स इनर एल्केमी. ओके, इफ वी टॉक अबाउट इमोशंस, फॉर एग्जाम्पल एंगर, सब में है थोड़ा मोड़ा ज़्यादा, राइट? सो गुस्सा बहुत बार हमारे रिश्तों को ख़राब करता है.
हम लोग कहते भी हैं, यार गुस्से में बोल दिया था, इसको दिल पे मत लगा, बट दिल पे लग जाता है, राइट? लोग भूलते नहीं हैं, राइट? कहते हैं ना कि 10 साल पहले भी कुछ हुआ था, वो आज भी मुझे याद है, मैं कभी भूलूंगा नहीं. So the anger affects our relationship. So how to transform anger, maybe to love, to peace, is what we'll do today. This is inner alchemy. Chalega? Okay. Also, one more thing. For example, one of the another energy which I feel is here is laziness, right? आलसपन. Okay. So जब आलसी होते हैं हम लोग, तो अपने targets achieve नहीं कर पाते हैं. So how can we transform laziness to proactiveness? Is inner alchemy. And also, if you see the last topic, the last subject है, that is thoughts into manifestation. So when we have clarity of thoughts, when we are certain in what we want to achieve, we can manifest things. Suppose यहाँ पे किसी को job चाहिए, अच्छा salary चाहिए, किसी को अच्छा घर चाहिए. You know, the few parents who want कि उनके घर में जो बच्चे हैं, उनके घर में शादी अच्छे जगह पे हो जाए, right? So whatever we want to manifest can only manifest if we believe in it. And our negative thoughts, negative attitudes becomes an obstacle in that manifestation. Do we agree? Right? Self-doubt, मेरे से होगा कि नहीं होगा? अरे इतने सारे बच्चे हैं, इतना competition है, मेरे को थोड़ी job मिलेगा उतना अच्छा. But we want to manifest a good job. But what we are thinking is actually opposite of what we want to. So जब हमारा emotions and thoughts उल्टा चलता है, और हम जो चाहते हैं वो उल्टा चलता है, तो manifestation नहीं होता है. It's like you're walking on an escalator, you want to go up, but आप उल्टा वाला escalator में हो, आप नीचे जो जा रहा है उसमें खड़े हो, और आप उस पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो. So we need to align our thoughts and emotions to what we want to achieve with. Clear? So this is what we'll do today. And before we deep dive into the technique, I would like all of us to understand who we actually are, and and what is around us that we are surrounded with. So we are surrounded with energy. We are living in an ocean of energy. आप किसी के घर जाते हैं, आपको घर बहुत सुंदर हो, बट बहुत बार जाने से लगता है यार बहुत डल लग रहा है अंदर से, खुश नहीं फील हो रहा है, चलो यहाँ से. ऐसा फील हुआ है? यस, दैट इज द एनर्जी ऑफ द हाउस. सो घर का एनर्जी भी हमें इम्पैक्ट कर रहा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिले, आपको बहुत अच्छा लग रहा है उससे मिलके, आप पहली बार मिले थे, बट हम कहते हैं ना उसकी वाइब मैच कर गई मेरी. दैट वाइब इज नथिंग बट एनर्जी. Right? Okay. Before we start and we go further, there's few certain what do you say, energy receptivity. जब हमारा हाथ क्रॉस रहता है ना, या फिर लेग्स क्रॉस रहता है ना, तो कुछ भी अंदर नहीं जाता है. वर्ड्स जाता है but transformation नहीं आता है. So what I'll request everybody is to keep your arms and your legs uncrossed. This is known as open posture. You will be able to receive things and apply, because I'm telling you, knowledge is available everywhere. What has to be done is to implement that knowledge. All right? Okay? So can I request everybody to open your palms and uncross your legs? और by chance आदत तो है, ठंड भी है थोड़ी, आप लोग ऐसे करेंगे. I'll just kindly request you all, जब भी हो तो uncross कर लीजिएगा. Clear? Okay. So where were we? Energy. So घर का एनर्जी होता है. आप सिटी का भी एनर्जी देख सकते हैं. मैं कल कलकत्ता से आ रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ था. उसने बोला कलकत्ता में आते हैं और थोड़ा स्लो फील होता है, मशीन नहीं चल रहे हैं, धीरे धीरे लगेज जा रहा है. इफ वी कंपेयर दिस विद बॉम्बे इज फुल पेस. यू गो देयर, आपको लगता है दौड़ो यार, काम खत्म करो. दैट इज द एनर्जी ऑफ द सिटी. सो वी आर सराउंडेड विद ओशन ऑफ एनर्जी, इन एन ओशन ऑफ एनर्जी. आर वी क्लियर? And also, who are we then? A great scientist, and he has spread pranic healing to more than 150 plus countries now. Okay? So let's do one interesting experiment before we go ahead. आप लोगों ने एनर्जी कभी टच किया है? Yes, no? थोड़ा मोड़ा, मैक्सिमम लोग ऐसे कर रहे हैं. I can see कुछ बच्चे अभी तुरंत आए हैं. Okay, so let's make energy tangible. चलेगा? टच करके देखें? Okay? It's very simple. Good simple steps हम लोग follow करेंगे. I'll just use this mic for a while. Hello, am I audible? Yes. So the technique is very simple. हम लोग को क्या करना है? Left hand ऊपर उठाना है. Okay? Center of the palms को press करना है. Press the center of the palms. Press the fingertips. दूसरे हाथ का भी सेंटर ऑफ द पाम्स को प्रेस करना है. प्रेस द फिंगर टिप्स.
Why are we doing this? Any guesses? क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि आज हम लोग अपने हाथों के बीच का एनर्जी को फील करेंगे. How is the feeling of the aura around the palms? Okay? Clear? वापस से प्रेस कर लीजिए. ठंड ज़्यादा है. हम लोग फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को छूने जा रहे हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैस. द फोर्थ स्टेट इज ईथर, एनर्जी और बायोप्लाज्मिक मैटर. तो बहुत सटल होता है. तो अगर दिमाग गायब हुआ, भटका, तो टच नहीं होगा. हाथ ज़्यादा ठंडा है तो टच नहीं होगा. इट्स वेरी वेरी सटल. सो हाथ को अच्छा से प्रेस कर लीजिए. थोड़ा हाथ को फ्री कर लीजिए. ओके, व्हेन यू फ्री योर हैंड्स यू विल फील एनर्जी बेटर. थोड़ा सा रिस्ट को रोटेट कर लीजिए. हमारे शरीर में बहुत सारे मेरिडियंस होते हैं, नाड़ियाँ होती हैं जिसमें प्राण फ्लो करता है. सो व्हेन वी डू दिस सर्टेन एक्सरसाइजेज यू विल फील एनर्जी बेटर. ओके, अब करना क्या है, हम लोग को हाथों के सामने 5 अराउंड 2 इंचेस 3 इंचेस का गैप रखना है. 5 सेंटीमीटर्स. ठीक है. आर्मपिट्स थोड़े खुले रहेंगे. ठीक है. मैं क्या करूँगा अभी, मैं आपको गाइड करूँगा. मैं बोलूँगा सांस लेने के लिए, रोकने के लिए, छोड़ने के लिए, रोकने के लिए. कुछ देर तक हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे. इससे माइंड थोड़ा स्टिल होगा. ओके, हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट हो पाएंगे. फिर मैं आपको बोलूँगा धीरे धीरे हाथों को दूर लेके जाएं और धीरे धीरे हाथों को पास लेकर आएं. वेरी स्लोली यू गो बैक एंड मेक योर हैंड्स क्लोजर. पीछे जाएंगे, आगे आएंगे. विल डू इट फॉर मे बी अ मिनट. ओके, आंखें बंद रहेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा और जीभ तालू से लगा रहेगा. टंग विल बी कनेक्टेड टू द पैलेट. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो क्लोज योर आइज, स्पाइन स्ट्रेट, कनेक्ट योर टंग टू द पैलेट. जीभ को तालू से लगा लीजिए. हाथों के बीच में 5 सेंटीमीटर या फिर 2 से 3 इंच का एक गैप रखें. आर्मपिट्स थोड़ा खोल के रखें. एक लंबी गहरी सांस लें, रोकें और जाने दें. ध्यान हथेली के केंद्र पे. एक और लंबी गहरी सांस लें, रोकें और जाने दें. एक और लंबी गहरी सांस लें, रोकें और जाने दें. ध्यान हथेली के केंद्र पे. ब्रीथ इन, hold, keep a smile on your face. Breathe out, hold, smile. Be aware of the palms. Breathe in, hold. Breathe out, hold. धीरे धीरे हाथों को दूर लेके जाएं और धीरे धीरे पास लेकर आएं. हाथों को दूर लेके जाएं जितना जा सकते हैं और धीरे धीरे हाथों को पास लेकर आएं. Keep on doing this maybe for a minute. Take your hands back. Bring it closer. जिसको जिसको फील होना शुरू हो गया है, enjoy the touch of energy. Feel the energy. Play with it. Enjoy that touch. Now slowly, gradually, you may keep your hands down and with a big good smile on your face, एक बड़ी मुस्कान के साथ आंखें खोल सकते हैं. Okay. Can I have a raise of hands? किसको किसको हाथों के बीच में कुछ फील हुआ? Fantastic, fantastic. Okay. So can you look around? A lot of people have felt the touch of energy. Let us discuss on it. Hello. Yeah. क्या फील हुआ आप लोग को, कौन बताना चाहेगा? Yes. Yeah, please. Felt like an invisible balloon in between. किसको किसको ऐसा फील हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, almost 15, 20 people. Nice, nice. Okay, so that is known as energy ball. हाथों के बीच में जो एनर्जी है, एनर्जी बॉल की तरह, something squeezy, right? Okay, और किसको क्या फील हुआ? Yes, yes. Heaviness फील हुआ? Who all felt heaviness in the hands? That is because energy has weight. Weight, the way water has weight, the way gas has weight, energy has weight.
Thank you for sharing. What else? Yes, yes. What? हाँ. Oh yes. इनका कहना है हाथ पीछे जा रहे थे अपने और पास आ रहे थे. किसको किसको ऐसा फील हुआ? Yes, lot of people, huh? Okay, lot of people. Heat लग रहा था मतलब, right? Energy has temperature. Okay? The way gas has temperature, the fourth state has temperature. Thank you for sharing. Okay? Expansion बड़ा हो रहा था और पास में नहीं आ पा रहा था, ऐसा हाथ के बीच में कुछ है, right? What is this? Please give her a big round of applause. What is she saying? Magnetic push pull जैसा feeling आ रहा था. किसको किसको ऐसा feel आया? No? Actually, we are energy magnets. हम लोग का जो energy है ना वो magnet है. मतलब हम लोग कौन है? Energy beings, प्राणी हैं. So हम कुछ ऐसा दिखते हैं. This is our real photo, by the way. हमारा physical body है जो visible है और एक invisible physical body है जिसको aura कहते हैं. Aura सुना होगा आपने, right? So aura is surrounded by around the physical body. ठीक है? हमारे जितने thoughts हैं, जितने emotions हैं, जो भी हम लोग feel करते हैं, वो इस aura में store होता है. अगर aura में negative thoughts, negative emotions, negative feelings रहेगा, तो aura कैसा रहेगा? Negative रहेगा. हम बाहर से क्या attract करेंगे? Aura is a magnet. So we are attracting who we are. Are we understanding? Right? अगर हम दिन भर fear में हैं, तो बाहर से क्या attract करेंगे? Fear. So people, situations, circumstances are created by us. हम लोग बहुत बार blame करते हैं ना कि तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी खराब हुई है. We should stop doing this because that doesn't make sense. जो भी हो रहा है वो हमारे कारण हो रहा है, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारी भावनाएं के कारण हो रहा है. So अगर हम लोग को inner alchemy करना है, तो क्या करना पड़ेगा? किसी और का करेंगे, खुद का करेंगे? किसी और पे हमारा कंट्रोल नहीं है. But when we change the energy in the aura, our life will change. To back this up with science, we have Dr. Masaru Emoto, जिन्होंने एक water experiment किया था. किन्होंने सुना है इनके बारे में? Yes, yes. इन्होंने क्या किया? पानी में कुछ शब्द बोले और उस पानी को crystallize कर दिया. For example, when he said, I can't see the text, but जब उन्होंने कुछ अच्छा बोला, तो बहुत ही सुंदर structure बन के आया पानी का. और जब खराब बोला, hate बोला, नफरत बोला, can you see? नीचे में जो फटा हुआ एक दिख रहा है, something like that. So जो molecular structure है पानी का वो change हो गया. हम लोग 70% पानी है. अगर शब्द बोलने से इतना impact आ रहा है, तो सोचिए क्या हो रहा होगा. आप किसी को कुछ खराब बोलेंगे, सबसे पहले वो impact किसको करेगा? हमें करेगा. So we need to be aware of what we are thinking, what we are speaking, and what we are doing. सबसे पहला impact खुद पर आता है. Okay? So today we'll be learning a powerful technique, or maybe we'll practice, जिससे हम लोग अपने aura को बदल सकते हैं, aura को transform कर सकते हैं, thoughts, emotions को change कर सकते हैं. Do you want to do that? Yes? No? Do you feel it will be helpful to all of you? Then only we should do, right? Yeah? Okay. So quickly एक काम करते हैं. आज हम लोग manifestation पे भी थोड़ा बात करेंगे. मैं चाहता हूँ आप लोग को जो भी आप चाहते हैं achieve करना in 2025, be specific. एक या फिर दो चीज़. लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाती है, right? But एक या फिर दो चीज़, क्योंकि समय कम है, समय का अभाव है. So can we just quickly write one or two things that we want to achieve in 2025? For example, if you want to achieve health, पैर में दर्द है, तुम लोग लिख सकते हैं कि I really want my legs to be healed in 2025, right? अगर किसी को कुछ घर manifest करना है, so I want my own house in 2025. Kids, you can ask for good placement or good grades. कि कौन से क्लास में आप लोग, if I can ask? 9th, next year 10th है, 10th का भी लिख सकते हैं, 10th में 95% आ जाए. Something like that, whatever you want. Okay? People who do business here, you can write net profits. कि मेरा इस साल का net profit इतना हो जाए. Clear? So write one or two certain thoughts that you want to manifest. And then we learn a technique how to make these thoughts into a reality. You have another 2 minutes. किसी को कुछ पूछना होगा, please feel free to ask. आप अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ लिख सकते हो, आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ लिख सकते हो. Perfect.
द राइट वे टू राइट इज कि वो हो गया है या फिर हो रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो पैर है वो ठीक हो गया है बाय 2025 or 2026, December 2026. You can also give a deadline if you feel that has to be achieved within a times bound. Okay? Or you can also write कि for example मेरा business अच्छा चल रहा है, you know, running कुछ है, उसको आप और अच्छा करना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं in the present state. Make it more specific. जितना स्पेसिफिक होगा उतना अच्छा होगा. ओके, सो एवरीबडी रेडी? डन? ओके, तो इस पर हम लोग थोड़ी देर बाद काम करेंगे, है ना. सो अभी हम लोग एक टेक्निक सीखेंगे. इस टेक्निक को कहते हैं मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स. दिस टेक्निक इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक फाउंडेड बाय मास्टर चोआ. कौन कौन ये टेक्निक प्रैक्टिस किया है पहले? There's 1, 2 people. Nice. Okay, we learn about this technique in a while. इस टेक्निक से आपका ऑरा जो है ना वो साफ होने लगेगा. आपके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस खत्म होने लगेंगे. इट्स लाइक टेकिंग अ स्पिरिचुअल शावर. जैसे हम शरीर की गंदगी हटाते हैं नहा के डेली, वैसे आप ये मेडिटेशन करेंगे डेली तो आपका ऑरा साफ होने लगेगा. नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस खत्म होने लगेंगे, वो रिप्लेस होने लगेंगे पॉजिटिव थॉट्स के साथ. तो आप बाहर से फिर क्या अट्रैक्ट करेंगे? पॉजिटिव थिंग्स अराउंड यू. आर वी क्लियर? So this is one of the most, I have practiced this technique from last 10 years around, 10 years अच्छे से करते करते maybe 5 years, it has changed my life. कोई भी चीज़ को मानना नहीं है आँख बंद करके. मैं ये बोल रहा हूँ, you don't need to believe me blindly, okay? You need to experiment with it, and then you have to make your own conclusions. कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. नॉलेज में नहीं जाना है, प्रैक्टिस करना है. तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस टेक्निक को, okay? And also we have some bonuses. अगर किसी को अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा देन वी विल बी हेल्पिंग यू ऑल. कैसे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे? वील टेक अ पॉज. बहुत बार जब माइंड नेगेटिव हो जाता है ना तो कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, हम लोग उसी थॉट में उलझ के रह जाते हैं. सो क्या करेंगे? वील टेक अ पॉज. और पॉज लेने का सबसे बेहतर तरीका है डू डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग. राइट? सो कैसे ब्रीदिंग करेंगे? ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड. ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड. What do you mean by abdominal breathing? जब सांस भरेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए, जब सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए. क्विकली चेक करिए तो हाथ रख के किसका पेट अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है. बहुत बार हम लोग चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, ओके? हम लोग का ब्रीदिंग बहुत बार गलत होता है. किसी का गलत हो रहा है तो प्लीज हाथ उठाइएगा. ब्रीद इन, पेट बाहर, ब्रीद आउट, पेट अंदर. होल्ड, होल्ड. क्लियर? ओके, दिस इज हाउ वी विल स्टार्ट. The second step is we will activate 2 of our chakras. हमारे शरीर में बहुत सारे चक्रास हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं. आजकल कर्लियन कैमरा भी आ गया है, GTV कैमरास आ गया है जो इसको देख सकता है. आप कैमरा में इमेजेस देख सकते हैं, उसके प्रिंट्स निकाल सकते हैं, ओके? यहाँ पर एक चक्र है, इसको हार्ट चक्रा कहते हैं. यहाँ पर एक चक्र है, इसको क्राउन चक्रा कहते हैं. ये चक्रा खोलना है और ये चक्रा खोलना है. क्यों खोलना है? बिकॉज ये मशीन तभी खुलेगा जब हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा खुलेगा. दिस बॉडी इज लाइक अ मशीन, ओके? हार्ट चक्र का प्रॉपर्टीज क्या है, इसका काम क्या है? हार्ट चक्र में हमारे सारे हायर इमोशन स्टोर होते हैं. लव, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, ये सब कहाँ स्टोर है? हार्ट चक्र में. कहते हैं ना कि इसका दिल बहुत बड़ा है, राइट? असली दिल बड़ा होगा तो हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, राइट? सो कौन सा दिल का बात हो रहा है? हार्ट चक्र. आपने सुना होगा रामायण में कहानी, हनुमान जी ने, सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान जी. इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू डू भक्ति, हनुमान जी इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट? उनको बोला गया कि तुम अपने भगवान को कितना मानते हो, कितना प्यार करते हो. उन्होंने क्या किया? छाती फाड़ के दिखा दिया, राइट? छाती फाड़ के दिखाया सेंटर से. यहाँ पे दिल है क्या? दिल कहाँ है? Our religion is actually is having lot of symbols that we need to study. किसका बात कर रहे हैं वो? हार्ट चक्र का. यहीं पर है लव, यहीं पर है रिस्पेक्ट. तो जितना हमारा हार्ट चक्र एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा लव, पीस, रिस्पेक्ट हमारे अंदर रहेगा. इसलिए हम लोग को ये करना चाहिए मेडिटेशन. बहुत मज़ा आएगा. यू विल गेट लॉट ऑफ लव, हैप्पीनेस एंड जॉय. क्लियर? और ये हार्ट चक्र इतना आसानी से खुल जाता है. ये पूरा गाइडेड मेडिटेशन रहेगा. कैसे गाइड किया जाएगा? बोला जाएगा एक खुशनुमा पल को याद करिए और फोकस करिए हार्ट चक्र पे. जस्ट विद द एनर्जीज ऑफ हैप्पीनेस ये हार्ट खुल जाता है. बहुत सिंपल है हमारा बॉडी.
ओके आप लोग जब खुश रहते हैं तो देखें आप रिएक्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। और जब गुस्से में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, इरिटेशन में रहते हैं, तो सब कुछ होता है उस समय, राइट? सपोज आपके छोटे बच्चे ने, आप गुस्से में थे, इरिटेटेड थे, कुछ बुरा हुआ था, और आपके घर पे बच्चे ने घड़ी तोड़ दी उस समय, तो क्या करोगे आप? सब उस पर टक टक, लेफ्ट राइट सेंटर, राइट? और जब हैप्पी रहते हो, रिलैक्स रहते हो, तो क्या करते हो? कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। सो व्हेन वी आर हैप्पी वी डोंट रिएक्ट। और लाइफ में प्रॉब्लम्स तभी आते हैं जब रिएक्ट करते हैं। We don't respond, we don't take right decisions when we are not happy. So that is why this meditation is important. It will increase happiness. Clear? Next, crown chakra. Crown chakra कैसे खुलेगा? Crown chakra तभी खुलेगा जब हम लोग खुश होंगे again. लेकिन उसको खोलने के लिए पहले हार्ट को खोलना होगा, फिर क्राउन खुलेगा। ठीक है? सो पहले खुश होएंगे, हार्ट पे फोकस करेंगे, फिर खुश होएंगे, क्राउन पे फोकस करेंगे, क्राउन खुल जाएगा। क्राउन का बेनिफिट क्या है? अगर क्राउन खुलेगा तो आपके अंदर इंट्यूशन आएगा, आपका ब्रेन में एनर्जी जाता है, क्राउन कंट्रोल्स द ब्रेन, जिससे आपका डिसीजन बेटर होने लगेगा। देयर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आज के लिए है वो है क्राउन चक्रा इज द एंट्री पॉइंट फॉर डिवाइन एनर्जी। जो भी आशीर्वाद भगवान से आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? क्राउन चक्रा से आ रहा है। जिसका क्राउन बंद है उनको आशीर्वाद नहीं आता है। आप देखे होंगे बहुत लोग हैं, बहुत सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं और उनके लाइफ में कोई परिवर्तन? हैव यू ऑब्जर्व्ड? पूजा पाठ में प्रॉब्लम था कि उनमें प्रॉब्लम है? उनका दरवाजा बंद है। ये खोल लेंगे तो बेनिफिट आने लगेगा। अब यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज हाउ वी आर एनर्जेटिकली मेड। क्लियर? सो हार्ट खोलना है, क्राउन खोलना है। ओके? कुछ हैप्पी मोमेंट्स मैं चाहता हूँ आप लोग शेयर करें, उससे थोड़ा रूम का हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाएगा। कैन आई हैव सम हैप्पी मोमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू? हु कैन शेयर? यस यस। किसी के लाइफ में कुछ खुशनुमा पल हैं जो आप आज यूज करेंगे? यस प्लीज शेयर। Oh wow. So what he can visualize, what he's saying, let's give him a big round of applause. ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे इवेंट्स अच्छा लगता है अटेंड करना, यहाँ पर आके हैप्पी फील हो रहा है, राइट? ये बोले तो मुझे भी थोड़ा हैप्पी फील हो रहा है कि इनको हैप्पी फील हो रहा है, राइट? सो आई कैन विजुअलाइज दिस कि somebody is appreciating, right? The organizers are sitting here, they are also happy. So आपने 3-4 लोग को खुश कर दिया है, right? So we can imagine and we can visualize these happiness and we have to feel here. यहाँ पे खुशी को महसूस करना है. Okay, anyone? Other happy moments? हाँ, आज तो मेरा दिन बन गया है। थैंक यू सो मच। देन मेरे लिए आज 2 हैप्पी मोमेंट मिल गया मेरे को। एक तो आप खुश हो गए और ये खुश हो गई, राइट? सो मैं एक हैप्पी मोमेंट यहाँ पे सोचूंगा, हार्ट खुल जाएगा, एक हैप्पी मोमेंट यहाँ पे सोचूंगा, क्राउन खुल जाएगा। ठीक है? फिर दोनों हाथों को हम लोग छाती के स्तर पर ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ के सामने एक छोटी सी पृथ्वी को इमेजिन करेंगे एंड वील ब्लेस द अर्थ। जो भी आपको चाहिए ना, आप उससे अर्थ को ब्लेस करो। इट इज इन गिविंग दैट वी रिसीव। हर धर्म में ये कहना है, आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। आप अर्थ को एनर्जीज दो ना। अभी तो एनर्जी टच किया हम लोगों ने। आप लव दो, पीस दो, जॉय दो, भर भर के अर्थ को ब्लेस करो। आशीर्वाद दो। आशीर्वाद तो हर कल्चर में देना सिखाए गए। हर कल्चर में आशीर्वाद कैसे देते हैं? हाथ उठा के देते हैं ना। चाहे वो लॉर्ड जीसस हो, चाहे वो लॉर्ड रामा हो, चाहे वो लॉर्ड कृष्णा हो, हाथ उठा के ही देते हैं। सो आवर हैंड्स कैन ट्रांसफर एनर्जी। ओके? सो हम लोग हाथ उठाएंगे, अर्थ को इमेजिन करेंगे और अर्थ को अच्छी एनर्जी से ब्लेस करेंगे। टुडे आई विल गाइड यू कि कैसे हम लोग को ब्लेस करना है। ठीक है? आफ्टर दैट हाथ को नीचे रख लेंगे और 9 बार ओम का चैंटिंग होगा। 2 ओम के बीच में ना एक गैप होता है। द पावर ऑफ ओम इज इन द गैप बिटवीन द 2 ओम्स। 2 ओम के बीच में एक स्टिलनेस है। हम लोग जो स्थिरता चाहते हैं ना लाइफ में, कि बाहर में कुछ भी हो, यू नो, भगदड़ मचा हुआ हो, बट अंदर से शांति फील होना चाहिए। दैट कैन हैपन इफ वी मेडिटेट और वी आर अवेयर ऑफ द गैप बिटवीन द 2 ओम्स। ओके? सो हम लोग इसको एक्सपीरियंस करेंगे और उसी समय सिर के ऊपर हम लोग एक लाइट इमेजिन करेंगे। कुछ स्टेप्स हैं बट धीरे धीरे हम लोग इससे यूज टू हो जाएंगे। क्लियर? सो हाथ उठाएंगे, अर्थ को ब्लेस करेंगे, हार्ट क्राउन खोल के, फिर ओम चैंटिंग करेंगे 9 बार और यहाँ पे लाइट इमेजिन करेंगे। आई विल गाइड यू। उसके बाद 2 मिनट का शांति होगा, साइलेंस। विल एंजॉय दैट साइलेंस। आफ्टर द साइलेंस बोला जाएगा कम बैक टू योर बॉडी। वापस से हम लोग हाथ ऊपर उठाएंगे और अर्थ को ब्लेस करेंगे, क्योंकि बहुत एनर्जीज आता है जितना हमारे को दरकार नहीं है। So we'll release that excess energy. फिर we'll imagine from the base of the spine, thick white light नीचे जा रहा है, अर्थ के 5 से 10 फीट नीचे, and we'll bless the mother earth. Okay? So let's experiment with this. And इसके बाद हम लोग bless करेंगे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने काम को. And we'll try to manifest with this technique. Clear? तो बस शुरू करते हैं. So let's start. Everybody, कुछ देर के लिए relax हो जाइए, mind को यहाँ ले आइए. Be here for this. We will do breathing. है ना?
सांस लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे, रोकेंगे. शुरू करते हैं. The audio is ready. Okay. So everybody, relax. Keep your spine straight. Connect your tongue to the palate. जीभ को तालू से लगा लीजिए. Let's center ourselves. Breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. Center yourself. Breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. Now let's do a small prayer to the Supreme God, हे परमपिता परमेश्वर, to all the great spiritual teachers, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी देवदूतों को हम आपका आवाहन करते हैं दिव्य ज्ञान प्रकाश के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए, धन संपदा के लिए, आध्यात्मिकता के लिए. Now focus on your heart chakra, center of the chest. एक खुशनुमा पल को याद करिए और इस खुशी को महसूस करिए. Feel the happiness. Smile. आप खुश हैं. Now focus on your crown center. Be happy. Smile. Think of a happy moment. भगवान को धन्यवाद दीजिए. Thank you for this body. Thank you for this life. Thank you to you that I can walk, I can talk. I'm super grateful that I'm alive. Thank you so much, God, for all the blessings, for all the kindness. Thank you. Now raise your hands in the blessing posture. हाथों को छाती के स्तर पर ऊपर उठाएं. Imagine करें छोटा सा पृथ्वी दोनों हाथों के सामने. मनी मन ये प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं. Lord, thank you for making me an instrument of love, instrument of peace. मुझे अपने शांति और प्रेम का माध्यम बनाने के लिए धन्यवाद. जहां पर भी दुनिया में दुख और दर्द है, वहां पर प्रेम और शांति पहुंचे. मनी मन देखें कि हाथों से ऊर्जा निकल रही है, पृथ्वी में जा रही है. पूरे पृथ्वी को प्रेम और शांति से भर दें. जिन घरों में लड़ाई है, वहां पर प्रेम और शांति पहुंचे. जिन ग्रुप्स में लड़ाई हो रहा है, वहां पे पहुंचे. जो कंट्रीज में लड़ाई हो रहा है, bless those countries with love and peace. Lord, thank you for blessing them with love and peace. पूर्ण विश्वास के साथ धन्यवाद. Wherever there is darkness, light. जहां अंधकार है, वहां रोशनी पहुंचे. जो भी व्यक्ति हैं जिनको रास्ता नहीं दिख रहा है, जिनको पाथ नहीं दिख रहा है, उनको पाथ दिखे. All the kids, दुनिया में जितने बच्चे हैं जो अपने करियर को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको करियर का पाथ दिखे. May they be blessed with light. May all the businessmen who shapes our country, bless them with light, that they bring the best to our country. Wherever there is despair, hope, doubt, faith, जहाँ निराशा है, आशा, जहाँ संदेह है, वहाँ विश्वास हो. मनी मन कहें, जो भी निराशा में है, उनको आशा मिले. Bless them with hope. समय बदलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी. मेहनत करते रहें. Bless them with hope. Bless them with faith. Now focus on your crown chakra. Crown पे फोकस करें. Imagine earth. पूरे पृथ्वी को प्रेम और करुणा से भर दें. मनी मन बोले, हे भगवान, मुझे प्रेम और करुणा का माध्यम बनाने के लिए धन्यवाद. पूरे पृथ्वी में प्रेम करुणा जाने दें. पृथ्वी को खुशनुमा देखें. पृथ्वी को खुशहाली से भर दें. अब अपना ध्यान आपके हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा में साथ में लेकर आए. दिस इज ट्विन हार्ट्स.
दोनों पे फोकस करें और हाथों से ऊर्जा बाहर जाने दें। इमेजिन करें सुनहरे रंग की रोशनी बाहर जा रही है पृथ्वी में, पूरे पृथ्वी को खुशी से भर दें। May this earth evolves. May this earth become better place for humanity, for all other creatures. So be it. अब धीरे धीरे हाथों को नीचे करें। सिर के ऊपर एक लाइट इमेजिन करें। अब हम लोग ओम चैंट करेंगे। 2 ओम के बीच में जो गैप है उसके प्रति सजग रहें। ओम मन में चैंट करेंगे। जब हम मन में ओम चैंट करते हैं तो इनर एल्केमी होता है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब जोर से करते हैं तो बाहर में बदलाव आता है। सब मन में चैंट करेंगे, जीभ तालू से लगा के रखेंगे, हाथ को खुला रखेंगे। मेरे साथ मन में ओम चैंट करें। 2 ओम के बीच में जो गैप है उसके प्रति सजग रहें। Be aware of the gap. Be aware of the light above the crown. Gap, light above the crown. Feel the stillness. अब 2 मिनट की शांति को अनुभव करें एंड स्विम इन द एनर्जी ऑफ पीस। शांति में रहें। Come back to your body. Move your fingers, move your toes. Be aware of the waking consciousness. धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं। अपने दोनों हाथों के सामने खुद को देखें। अपने आप को आशीर्वाद दें। अपने आप को आशीर्वाद दें अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छे रिश्तों का, धन संपदा का, आध्यात्मिकता का। अपने हाथों के सामने अपने परिवार को देखें। परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दें खुशियों का। सबको साथ में हंसता खेलता हुआ विजुअलाइज करें। सब स्वस्थ हैं, सब खुश हैं। अपने व्यापार या फिर अपने करियर या फिर अपनी पढ़ाई को देखें। ब्लेस इट विथ सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। इमेजिन करें हाँ आपके शहर नागपुर को, इस शहर को आशीर्वाद दें। मनी मन कृतज्ञता रखें कि इस शहर ने आपको बहुत कुछ दिया है। आप इसे आशीर्वाद दें तरक्की का, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्रॉपर डेवलपमेंट का, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर का, प्रॉपर सेफ्टी का। अब आप इमेजिन करें जो आपने लिखा है आपके विश पेपर पे। प्रॉपर इमेजिन करें कि वो पूरा हो रहा है और आप इस ऊर्जा को वहाँ जाने दें। मुस्कुराएं, महसूस करें, फील करें कि दैट इज टर्निंग इनटू अ रियलिटी।
bless, visualize that has manifested. मनी मन भगवान को धन्यवाद दें. Thank you for fulfilling this wish of mine. It's your energy which I am transferring to this wish. Thank you for the blessing. अच्छे से आशीर्वाद दें, bless करें. मुस्कुराएं, खुशी को महसूस करें. अब इमेजिन करें कि आप बेस ऑफ द स्पाइन पे फोकस किए हुए हैं और वहाँ से थिक वाइट लाइट धरती के नीचे जा रहा है 9 से 10 फुट और आप पृथ्वी से स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं. मनी मन बोले आई एम रूटेड टू मदर अर्थ. अब हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं. वी थैंक यू टू द सुप्रीम गॉड, टू ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर्स, टू ऑल द ग्रेट वंस, फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, फॉर ऑल द हैप्पीनेस एंड जॉय. In full faith, we thank you. And with a big, good smile on your face, slowly, gradually, as and when you feel comfortable, you may open your eyes. Okay. 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 How is everybody feeling? कैसा लग रहा है? Nice. Okay. Whole are feeling little calm, peaceful, relaxed, right? किसको माथा हैवी लग रहा है? किसी को हेड हैवी लग रहा है? जिनको भी हेड हैवी लग रहा है ना, जस्ट टैप, बिकॉज बहुत एनर्जी आता है. एनर्जी का एक वेट है, उससे हैवी हो सकता है. टैप. ओके. ऑल्सो टैप योर शोल्डर्स, जिसको हैवी लग रहा है. शोल्डर्स बहुत हैवी हो जाते हैं. देन टैप योर स्टमक. यू कैन टैप योर लीवर. एनर्जी हर जगह जाता है, तो टैप करते रहें. ओके. जिनको बहुत एनर्जी आएगा उनको और हैवी लग सकता है, तो आप एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद. यू विल जंप. बहुत बार एनर्जी दिखता नहीं है, बट बहुत कुछ कर जाता है. इफ़ यू डू दिस मेडिटेशन फॉर 21 days, इट्स अ प्रॉमिस दैट यू विल सी अ शिफ्ट विद इन यू. बहुत कुछ चेंज होते हुए दिखेगा. ये जो एक्चुअल टेक्निक है ये 21 मिनट्स का है. मैं अभी इसको शॉर्ट में समय के हिसाब से कराया हूँ. बट इफ़ यू डू द एंटायर टेक्निक यू विल बी अमेज्ड. The bonus, the gift that I wanted to share with all of you is this. We are doing a Twin Hearts meditation challenge as a gift to everybody. जिनको भी इस challenge में join करना है, you can just fill the form and you will be guided on how to meditate regularly free of cost. There'll be no charge for it. It's a service. इसको सेवा के रूप में we'll be doing. Okay? It's a 7-day challenge to experience greater inner transformation. Take few minutes. Okay, we'll be keeping this open. You can also maybe do it later or maybe now, whatever suits you. Before we close, जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि कभी भी आपको गुस्सा फील हो रहा होगा तो गुस्सा का ऑपोजिट होता है लव और पीस. तो अब अपने आप को इमेजिन करने से पहले अर्थ को इमेजिन करिएगा और लव पीस से भर दीजिएगा. ओके. आपने पृथ्वी को दिया है, यू आर इंटाइटल्ड टू रिसीव. फिर आप अपने आप को भी लव और पीस से ब्लेस करिए. सेम प्रोसेस. हार्ट क्राउन खोलेंगे, लव पीस से ब्लेस करेंगे. कभी आप बहुत सैड हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, याद कर लीजिएगा आज का सेशन और उठिएगा, हाथ उठाइएगा, अपने आप को ब्लेस करके उस स्थिति से बाहर निकालिएगा. इफ़ यू आर डिप्रेस्ड, डू दिस मेडिटेशन. दिस इज एक्चुअली स्ट्रेस मैनेजमेंट एंटी डिप्रेसेंट. जो लोग भी डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं वो खत्म कर जाएंगे, वो उनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. डेली स्ट्रेस होता है, डू दिस मेडिटेशन, आपका ऑरा एकदम साफ हो जाएगा. ओके. एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, ये जब आप मेडिटेशन करेंगे प्रॉपरली, उसके बाद जब उसको ब्लेस करेंगे, यू नो बॉडी में बहुत सारा गामा वेव्स जनरेट होता है एज पर द रिसर्च व्हेन यू डू ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन. इसका रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड है, आप चेक कर सकते हैं. यू विल बी अमेज्ड, योर मैनिफेस्टेशन विल गो वेरी वेरी फास्ट. जिनको भी कुछ मैनिफेस्ट करना है ट्राई करिए. मैंने शुरू में बोला था, बिलीव नहीं करना है किसी को ब्लाइंडली, एक्सपेरिमेंट करना है, फिर मानना है. कोई भी कुछ भी बोल के जा सकता है. Our teacher says, don't believe people blindly. Experiment and make your own conclusions. So I invite you all to do the experiment with Twin Hearts meditation. And I hope you all enjoyed the session. And I also had a great time with all of you. Thank you so much for joining in. And yeah, that's my time. Thank you. By the way, thank you for the opportunity to the Raisoni Foundation, the Raisoni Group of Education. Thank you so much for this priceless gift. Thank you. Okay, if any question and answers, I'm here. We can discuss. Or right now, if you want to discuss something, you have anything? Yes, yes. Yes. Yeah, yeah. So how do we avoid it?
वेरी गुड क्वेश्चन. इनका क्वेश्चन है कि सेल्फ डाउट तो बहुत नेचुरल है, आता ही है. इतना कंपटीशन है, कैसे जॉब लगेगा, मेरे में उतनी काबिलियत नहीं है, ऐसा लगता है बहुत बार, राइट? सो क्या करना चाहिए? डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग. ओके, सेल्फ डाउट का ऑपोजिट क्या है? व्हाट इज द ऑपोजिट टू डाउट? Faith and confidence. What we do is, I have faith, I have confidence, I will achieve it. This is known as affirmation. I have faith, I have confidence, I will do it. Affirmations मतलब क्या? आप एक विचार को बार बार बोल रहे हो. It is becoming a thought. Proper thought बनता है कि हम कर सकते हैं. दूसरा, the power is in the energy. आप देखेंगे ना, आप महाभारत पढ़ देखे होंगे या फिर कोई कहानियाँ सुने होंगे, कोई ध्यान कर रहा होता है, उसके मन में कुछ इच्छाएं होती है, महल चाहिए, वो मेडिटेशन करता है, ऊपर से कोई आते हैं, तथास्तु बोलते हैं, एंड द विश बिकम्स रियल. तथास्तु मतलब क्या? एनर्जी ट्रांसफरेंस. एनर्जी ट्रांसफरेंस इज रियल. क्या करिए? अपने आप को इमेजिन करिए और ब्लेस करिए, भर के ब्लेस करिए विथ फेथ, विथ बिलीफ, सेल्फ बिलीफ. यू विल बी अमेज्ड. विद इन अ मंथ यू विल सी सो मच confidence you will have within you that you will achieve what you want to achieve. Thank you for asking the question. Thank you. Thank you. Thank you. What's a good name? Sakshi. Can we have a good round of applause for her? She's thinking, she's asking. Maybe I hope to see you experimenting with it. Anybody else before we close? Yeah. Yeah, take the mic. Take the mic. What's a good name? सो जब हम मेडिटेशन करते हैं, लाइक स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि लाइक मतलब भाई बाहर की वॉइस भी आ रही है, लाइक हम ऐसे इमेजिन करके लाइक मेडिटेशन शुड बी लाइक कुछ भी थिंकिंग नहीं आ रही है, थॉट्स नहीं आ रहे हैं, बट इट्स It keeps coming. Keeps coming. Yeah. ओके. सो तब मुझे ऐसा था कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. एंड देन आई रीड इन बुक दैट मेडिटेशन में थॉट्स आते रहेंगे. यू जस्ट हैव टू बी like you are sitting side of the road and the vehicles coming and going. You just have to observe and let it come, let it go like that. But फिर भी यार कुछ सब मेडिटेशन में तकलीफ होती है. Very good question. It's a very common problem being faced by a lot of meditators. Huh? So first, let's have a good round of applause for the question. इनका question है कि कैसे हम लोग जो inner noise है, जो thoughts हैं, meditation के दौरान कम कर सकें, right? One of the best ways is to understand the reality. सब कुछ practice से होता है. हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि एक बार आँख बंद करें, first day meditation और शांत हो जाए मन. Not possible. Meditation is an art. You have to do it to master it. पहला. So first step क्या रहेगा? कोई भी विचार आता है ना, आप उसको schedule करिए. कि suppose आपके दिमाग में आया कि यार मेरे को तो पढ़ाई में ये चैप्टर पढ़ना है, ये मेडिटेशन के दौरान ज़्यादा आएगा, तो आप उस समय क्या करोगे? उसको बस देख के जाने मत दो, आप उसको schedule कर दो कि आफ्टर मेडिटेशन आई विल थिंक ऑन इट एंड देन फोकस. थोड़ा देर फोकस कर पाए, फिर एक और विचार आएगा, देन अगेन schedule it कि इसको अभी नहीं सोचते, इसको बाद में करेंगे. एक डेट दे दो उसको, आप वापस से मेडिटेशन में आ जाओ. तो कैसे होगा? डिस्ट्रैक्शन फोकस, डिस्ट्रैक्शन फोकस, ये होते रहेगा. इट्स अ जर्नी. और ग्रेजुअली एक दिन आएगा जब लगेगा यार आज तो बस 4-5 ही डिस्ट्रैक्शंस आया, बहुत कम हो गया. एक दिन आएगा जब लगेगा आज डिस्ट्रैक्शन हुआ ही नहीं, क्या मेडिटेशन हुआ. सो इट इज अ प्रोसेस. ओके, सो यू कैन प्रैक्टिस लाइक दिस. ओके, थैंक यू. वेरी गुड क्वेश्चन. इनका क्वेश्चन है कि जब बहुत स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो होता नहीं है कुछ, बॉडी फ्रीज हो जाता है. बिकॉज स्ट्रेस एक्चुअली फ्रीज द बॉडी. बहुत सारी बीमारी का कारण ही स्ट्रेस है. ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेज स्ट्रेस के कारण होता है, एंग्जाइटी के कारण होता है, राइट? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे बीपी है, क्या बोलेगा? बहुत स्ट्रेस लेते हैं क्या? दैट इज द रीजन, राइट? सो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट द बॉडी विल हैव टू फाइट. आपको फाइट करना पड़ेगा. नहीं, स्ट्रेस बड़ा है कि हम बड़े हैं? मेरे को इमोशंस को कंट्रोल करना है कि इमोशन को मेरे को खुद को कंट्रोल करने देना है? फाइट करना पड़ेगा, लेकिन ईजी नहीं है. तो उस समय क्या करेंगे? सबसे पहले थोड़ा स्ट्रांग होते हैं और ब्रीदिंग करेंगे, बस कि आप उस माइंड स्टेट से शिफ्ट हो पाए, एक पॉज ले पाए. ब्रीदिंग करते रहिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा स्टिल हो जाएंगे, तब एक छोटा सा मेडिटेशन करिए. 5 मिनट्स 10 मिनट्स का मेडिटेशन करिए. ट्विन हार्ट्स को अपने शब्दों में करिए, ब्लेस करिए अर्थ को. विद इन 2-3 days ऑफ
doing this, you will be out of it. Experiment करके देखिएगा. Okay? Yes. Yeah. Thank you for the question. Good morning. Sorry, thank you. If we want to inculcate in the school children, Oh, what wow. is the appropriate age to do this so that they can have out on the right path? Oh, fantastic and how question. to do that? Fantastic question. Let's Thank give her a you. big round of applause because the students, the kids are the future for our country. You know, we have to help them understand emotions, understand thoughts, right? So yes. So what we can do is, ये जो meditation है, जो इसका proper version है, ये 10 साल के जो ऊपर के बच्चे हैं, वो सप्ताह में एक दिन कर सकते हैं, बस. That's enough for them. जो proper 21 days का, जो 21 minutes का meditation है. 15 साल से ऊपर के बच्चे इसको कितना भी कर सकते हैं every day. Okay? How can we inculcate this in them? Maybe we can connect to schools and colleges and we can have meditation periods. Once a week, we have to normalize meditation. अभी हम लोग stress normalize कर चुके हैं, fear normalize कर चुके हैं. करें कि नहीं? अरे stress तो आम है, सबको होता है. सहो, right? Right? We need to normalize meditation. कि meditation हर घर में हो रहा है, meditation हर student कर रहा है. We can have meditation periods. So all those people who own schools, colleges, who owns इनका offices है, जहाँ कहीं भी, you know, जहाँ पर एक group है, we can teach them meditation. Right? We can start by having a student period to meditate. जैसे games period होता है, PT period होता है, अब होना चाहिए meditation period. That can help. Because कोई भी बच्चा ना तुरंत नहीं सीखता है. उसको बार कराते कराते जिस दिन वो sad हो जाएगा ना, उस दिन वो practice करेगा और वो पकड़ लेगा meditation को. Something like that. I come from Ranchi, and in Ranchi we have normalized meditation periods in few schools. Not regularly, but we are trying. We are trying. Yes. Meditation नहीं होता है. बहुत ज़रूरी है. Okay. Yes. I'm really very sorry that I'll have to. Yeah. Mr. Arihant is available. You can speak with him outside the hall. And we have to start with the next session at 11. So, thank you. Thank you so much. sir. Thank you so much for the Arihant. warm welcome. Thank you. Thank you, everybody. I'm here for all the questions. Thank you for being so patient and kind with me and to learn this art. Thank you. You talked Thank on you. stress, anger, laziness. You encountered or you introduced us with our own energy. You made it tangible for us. You introduced twin heart meditation. And also you taught how to manifest our thoughts, our wishes. I thank you very much for being here. Audience, I'm sure that you would be taking back a great spark of thoughts and ideas that were shared by our guests on the topic of this session. Thank you for joining us, and we will meet you for the next session in OCLF. Happy wisdom.